The last time we solved question number 1 and 2 of exercise 8.1. Chapter is quadrilaterals. Today we will solve question number 3 of same exercise and same chapter. The question is, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles. Show that if the diagonals of a quadrilateral, it means we are given a quadrilateral A, B, C, D. नाम नहीं given है, हमने खुद से नाम रखा. Question is, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, diagonals bisect each other at right angles, it means क्या given है, a quadrilateral ABCD with diagonals. जब ABCD quadrilateral है तो diagonals क्या होंगे, AC and BD. But question क्या कह रहा है, diagonals bisect each other at right angle. अब diagonals bisect करते हैं. Suppose अगर ये diagonal है BD, bisect करने का मतलब हो गया दोनों parts equal. This one is AC, इसके भी दोनों parts equal. Diagonals bisect each other means OA is equal to OC, OA equal to OC and OB is equal to OD, OB is equal to OD. Diagonals bisect each other at right angle. Diagonals right angle का bisect करने it means AC and BD are perpendicular to each other. तो मैं किसी एक एंगल को यहाँ पे 90 डिग्री का साइन दे दूंगा. In fact all these angles are 90 degree each. ये सारे angles 90 डिग्री के हैं. Then it is a rhombus. हमें प्रूव करना है quadrilateral ABCD is a rhombus. This one is a rhombus. ये हम प्रूव करेंगे. Now firstly we must know the properties of a rhombus. अब rhombus की properties क्या है? सबसे पहले diagonals bisect each other at right angle. rhombus में ऐसा ही होता है. इसके diagonals bisect करते हैं. bisect तो है यहाँ पे already. At right angle ये भी है. rhombus की properties. diagonals bisect each other at right angle and all the sides of a rhombus are equal. rhombus की सारी sides equal होती हैं. These are the properties of a rhombus. अब rhombus की जो properties हैं उनमें ये property already given है, diagonals bisect each other at right angle भी given है. now हमें prove क्या करना है, all the sides are equal. अगर हम ये prove कर लें कि इसकी सारी sides equal, that is AB is equal to BC is equal to AC is equal to AD. अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं देन वी कैन से दिस वन इज अ rhombus. तो हमें सिर्फ साइड्स को इक्वल प्रूव करना है. तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, जब साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, फर्स्टली मैं कोई दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को डिस्कस करूंगा. सपोज दीज टू ट्राइंगल्स, दिस वन इज AOB देन BOC. पहले डायग्रामेटिकली पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे. अब इन दो ट्राइंगल्स को अगर मैं देखता हूँ, इसमें OA इसमें OC इक्वल, मतलब एक साइड इक्वल हो गई. फिर इस ट्राइंगल में OB, इस ट्राइंगल में भी OB कॉमन. दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो थ्री पार्ट्स जब इक्वल हो जाएंगे वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, CP से AB और BC इक्वल हो जाएंगे. वी कैन से AB इज इक्वल टू BC. इन द सेम वे हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू CD. जब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा CD इज इक्वल टू AD. तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे. मतलब हमें दो दो करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. देयर आर नंबर ऑफ वेज. कभी हम ऐसा भी करते हैं, इन दो को कॉन्ग्रुएंट किया, इन दो को कॉन्ग्रुएंट किया, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं. बट यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपली यही लेके चलूँगा. फर्स्टली ये दो ट्राइंगल्स in triangle AOB and triangle BOC. डायग्रामेटिकली हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. इन दीज टू ट्राइंगल्स, इसमें क्या है, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC. दिस वन इज गिवन. देन दिस एंगल, चलिए इसका नाम हम रख सकते हैं, नहीं भी रखा तो AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC. अभी हमने डिस्कस किया है, ईच 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री. आफ्टर दैट इन दोनों ट्राइंगल्स में OB साइड कॉमन है. OB इज इक्वल टू OB कॉमन. उसके बाद
These two triangles are congruent. Therefore, triangle AOB congruent to triangle BOC by congruency condition कौन सी यूज हुई? This one is side, then angle, then side. दो sides के बीच angle. SAS congruency. Now these two triangles are congruent, and after congruency, देखिए these two angles are equal. इस angle के सामने AB और इस एंगल के सामने BC. AB is equal to BC. Let this be equation number 1. अब इन दो ट्राइंगल्स को कन्वर्ट करूंगा. इन ट्राइंगल BOC and triangle BOC and COD. अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या होगा? सेम प्रोसीजर. इसमें OB, इसमें OD. OB is equal to OD given. OB is equal to OD given. Then ये एंगल 90 डिग्री, इस एंगल का नाम BOC. एंगल BOC equal to angle COD, each 90. After that, this side is common to both the triangles. OC is equal to OC common. When three parts are equal, triangle BOC is congruent to triangle COD. Congruency condition is same. SAS congruency. अब ये दो एंगल्स इक्वल हैं. इस एंगल के सामने BC, इस एंगल के सामने CD. BC is equal to CD. एक बात को और ध्यान रखें, यहाँ हमने मेंशन नहीं किया. These are corresponding parts of congruent triangle. That's why these are equal. And this one is equation number 1. Now, reason is same. And let it be equation number 2. Now, हम इन दो ट्राइंगल्स को भी कन्वर्ट करेंगे, फिर इन दो ट्राइंगल्स को कन्वर्ट करेंगे. तो जरूरी नहीं है सबको कन्वर्ट करें. आप ऐसा करें सिमिलर. In the same way, these two triangles are congruent. Triangle COD congruent to triangle COD and AOD. And ये दोनों भी congruent हो जाएंगी. Triangle AOD congruent to triangle AOP. Similarly लिख दिया. Same rules apply होंगे. Now when these triangles are congruent, जब ये दो triangles congruent हो जाएंगी COD and AOD, तो इस triangle में CD side और AOD में AD side. यहाँ पे आप देखेंगे AOD and AOD. AOD में AD side is equal to AOB में AB side. We can mention the reason. CPCT. Again CPCT. Now equation 3 and this one is equation number 4. और अब आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन AB equal to BC, सेकेंड इक्वेशन BC equal to CD, then CD equal to AD, then AD equal to AB. AB BC के बराबर, BC CD के बराबर, CD AD के बराबर और AD AB के बराबर. It means ultimately all the four sides are equal. आप लिखेंगे from equations 1, 2, 3, 4. From all these equations, AB equal to BC equal to CD equal to AD. ये सभी इक्वल हैं. मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स इक्वल. जब सभी साइड्स इक्वल हो गई, hence ABCD is a rhombus. Now the quadrilateral is satisfying all the properties of a rhombus. That's why this one is a rhombus. So this is your question number 3.
Now question number 4. What is question number 4? Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. It means we are given a square here. This one is question number 4. जब स्क्वायर गिवन है तो मैं स्क्वायर की ही शेप बनाऊंगा. जब स्क्वायर बनाना है, all the sides must be equal and each angle should be equal to 90 degree. These are the properties of a square. All the sides are equal. Each angle is equal to 90 degree. Let this be a square. A, B, C, D. एक बार फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. It means हमें diagonals भी draw करने हैं. We will draw the diagonals. AC and BD are the diagonals, and let O be the point of intersection of the diagonals. What is given? A square ABCD. You can write with diagonals AC and BD, otherwise there is no need to write with diagonals, because if ABCD is the square, then diagonals will be, diagonals क्या होंगे उस time? AC and BD ही diagonals होंगे. To prove, एक बार फिर देखेंगे क्वेश्चन. Question is, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. It means हमें prove क्या करना है? Diagonals are equal, bisect each other at right angles. तो देखेंगे आप, diagonals are equal. हमें prove करते टाइम proof में first part, diagonals are equal means AC is equal to BD. एक ये prove करना है. Diagonals are equal and bisect each other. Bisect each other मतलब ये जो दो पार्ट्स हो रहे हैं, जैसे इस डायगोनल के दो पार्ट्स हुए OA एंड OC, these parts are equal. At right angle, bisect at right angle. Right angle के लिए आपको AC is perpendicular to BD ये प्रूव करना है. मतलब AC और BD के बीच 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90, ये भी 90, हर एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. प्रूफ. अगेन वी विल प्रोसीड स्टेप वाइज. बिल्कुल स्टेप वाइज हमें चलना है. क्या स्टेप लेना है, क्यों लेना है? फर्स्टली वी आर गिवन अ स्क्वायर. ABCD is a square and we know all the sides of a square are always equal. If ABCD is a square, then AB equal to BC equal to CD equal to AD. All the sides are equal. Now we have to prove AC equal to BD. पहले मैं यही प्रूव करूँगा AC equal to BD. अब AC equal to BD प्रूव करने के लिए हमें एक चीज़ को और ध्यान रखना है. हमें फर्स्टली वो दो ट्राइंगल्स कंसिडर करनी है जिनमें एक में AC और एक में BD फॉल करता हो. देखेंगे आप, मैं यहाँ दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करूँगा. ये एक ट्राइंगल, देन सेकंड वन,
स्टेप वाइज चलना है, सिस्टमेटिक चलना है और सिस्टमेटिक ही इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करनी है। These are two triangles. अब ये कौन सी ट्राइंगल्स हैं? मैंने अभी कहा एक में ए सी फॉल करना चाहिए, एक में बी डी फॉल करना चाहिए। ए बी सी, ए बी सी, सेकेंड बी सी डी, बी सी एंड डी, दीज आर टू ट्राइंगल्स। आप देख रहे हैं एक में ए सी फॉल करता है, एक में बी डी फॉल करता है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्फ्रेंट करूं, अगर मैं कॉन्फ्रेंट कर जाता हूं, देन वी कैन प्रूव ए सी इक्वल टू बी डी। इसमें ए बी, इसमें डी सी, AB and DC, these are the sides of square and all the sides of a square are equal. AB and DC are equal, so एक part equal हो जाएगा. Then BC is equal to BC, common. After that, each angle of square is equal to 90 degree. Square का हर एक angle 90 degree होगा. That's why each angle is 90. So we can say these two triangles are congruent. जब ये triangles congruent हो जाएंगी, B के सामने AC, C के सामने BD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. So first part यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा AC equal to BD. It means we have to consider those two triangles in which in one triangle AC should fall and in second triangle BD should fall. तो मैं ये दो triangles यहाँ consider कर रहा हूँ. In triangle ABC and triangle DBC. One is ABC, second one is DBC. Here AB is equal to BC. AB और DC क्यों इक्वल है? ABCD is a square. AB and DC are the sides of a square. Sides of square. All the sides of a square are always equal. Then this one, angle ABC. ये साइड पे अगर आप बना लेंगे, आपके लिए इनको अंडरस्टैंड करना इजी होगा. यहाँ से ABC ये पूरा एंगल सबके लिए समझना इतना इजी नहीं है. दैट्स व्हाई ये जरूर आपको ड्रॉ करना है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ ABC is equal to this one DCB, each 90 degree. We know each angle of a square is equal to 90 degree. Square का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है. This one is 90, this one is 90. That's why ABC equal to DCB. Now third part, BC and BC. BC is equal to BC. Common. Three corresponding parts are equal. Therefore, triangle ABC congruent to triangle DBC by SAS congruency. When these two triangles are congruent, मैंने अभी कहा AB equal to AC and BD are equal. AC is equal to BD. Corresponding parts of congruent triangles. So our first part is proved here. हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया. नाउ सेकेंड पार्ट क्या है? OA इक्वल टू OC and OB इक्वल टू OD. इन ऑर्डर टू प्रूव सेकेंड पार्ट OA and OC, OB and OD, हमें वो दो ट्राइंगल्स यहाँ कंसिडर करनी है जिन दो ट्राइंगल्स में ये OA, OC, OB, OD ये फॉल करते हैं. OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD. तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, पहले सपोज करके चलना है. आई कंसिडर दीज टू ट्राइंगल्स. आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर कुछ इक्वल है तो इस ट्राइंगल में AD, इस ट्राइंगल में BC, दीज टू आर इक्वल. वाई इक्वल, दीज आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. एक पार्ट हो जाएगा आपके पास. देन दिस वन. चलिए ये दो एंगल्स अगर मैं ले लेता हूँ, यू नो ABCD इज अ स्क्वायर.
आपको ये भी पता है कि ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड अ स्क्वायर इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। कभी कभी कुछ टीचर्स प्रूव भी करवा देते हैं कि दिस वन इज अ स्क्वायर, तो हम प्रूव कर लें कि दिस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, बट देयर इज नो नीड टू प्रूव बिकॉज इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट अ स्क्वायर इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। सो इफ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम देन ये z टाइप एंगल्स बनेंगे, these two lines are parallel, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल सीधा z बनेगा, ऐसे बीच में ट्रांसवर्सल है, सो ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब आप देख सकते हैं एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, आप यहाँ देखेंगे इस एंगल के सामने ओ ए, इस एंगल के सामने ओ सी इक्वल हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे इस एंगल के सामने ओ डी और इस एंगल के सामने ओ बी, जो इक्वल एंगल्स हैं उनको मैं सेम कलर दे रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक, यहाँ ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो सीपीसीटी से ओ सी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो हमें ये दो ट्राइंगल्स यहाँ कंसिडर करनी है। लिखेंगे इन ट्राइंगल विच वन ओ, ऐसा करते हैं ए ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। तो कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए चलिए ऐसा भी कर लिया। अब आप देखेंगे लेट इट बी एंगल वन, दिस वन इज एंगल टू। मैं लिखूंगा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। ये आपको याद रखना है, अ स्क्वायर इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। सो इफ दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, दैट इज AD is parallel to BC, so angle 1 is equal to angle 2. These are alternate interior angles. Alternate interior angles. Then इस ट्राइंगल में AD, इसमें BC, AD is equal to BC. Reason, sides of square. After that यहाँ एंगल 3, यहाँ एंगल 4, इक्वल एंगल्स को मैंने सेम कलर भी दिया। एंगल 3 is equal to angle 4. These are again alternate interior angles. After that, triangle AOD congruent to triangle BOC by angle side angle ASA congruency. यहाँ से रिजल्ट क्या आया हमारे पास, when these two triangles are congruent, then we can say, देखिए ब्लैक ब्लैक कलर के एंगल्स इक्वल है, एंगल 1 के सामने OD और 2 के सामने OB। OD is equal to OB and 3 के सामने OA, 4 के सामने OC। OA equal to OC, रीजन देंगे CPCT। So और second part is also proved here. हमने सेकेंड पार्ट में प्रूव कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट है AC is perpendicular to BD। एक बात का आपको ध्यान रखना है, AC परपेंडिकुलर टू BD के लिए हमें कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। 1 2 3 4 इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। अब इनमें से किसी एक को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए बस ये एक चीज़ आप लेके चलें, दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों एंगल्स का सम इट विल बी 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180। अब जब सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180, तो एक को हमें 90 प्रूव करना है। इट मीन्स हमें बस ये प्रूव करना पड़ेगा कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अब इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें इन दो ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो यही लेंगे आप थर्ड स्टेप। थर्ड, अगेन ये दो ट्राइंगल्स लूंगा, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। इन ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल BOC। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखें, इन दोनों को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कैसे करेंगे? इस ट्राइंगल में OA और इस ट्राइंगल में OC, दीज टू आर इक्वल, OA इक्वल टू OC। उसके बाद इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल, इसमें AB, इसमें BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती हैं। दोनों ट्राइंगल्स में OB कॉमन है, तो 3 साइड्स इक्वल हो जाएंगी। OA इक्वल टू OC, ये भी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड। देन इसमें AB और इसमें BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होंगी। इसमें OB, सेकेंड ट्राइंगल में भी OB कॉमन, therefore triangle AOB congruent to triangle BOC by SSS congruency। यहाँ से आपने रिजल्ट क्या निकाला? देखिए AB और BC इक्वल है, तो AB के सामने दिस वन, इस एंगल का नाम एंगल AOB इक्वल टू एंगल दिस वन BOC। CPCT अभी हमने डिस्कस किया कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, बट एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। दिस वन इज लीनियर पेयर, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री। दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं, so each of the angles will be 180 upon 2, that is एक एंगल भी 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री आ गया, इट मीन्स AC और BD परपेंडिकुलर हैं, hence AC is perpendicular to BD। so this is question number 4 of exercise 8.1। बड़े सिस्टमेटिकली इन क्वेश्चंस को हमने प्रूव करना है। थैंक यू।